If you're someone who self sabotages a lot, which means गोल तो था कि वेट लूज करना है लेकिन जाके उल्टा और ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो एंड यू आर वर्किंग अपोजिट ऑफ व्हाट यू डिसाइड टू डू, आपको ऐसा लगता है मेरा दिमाग जो मैं सोचना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसका उल्टा ही जाके करता है, ठीक है, देन टुडे सेशन इज गोइंग टू बी फॉर यू सेल्फ sabotage. Why does it happen, where does it comes from, and the science behind it, and how you can make sure that you actually fix it and you do not become the biggest obstacle in your own life. ठीक है, I just came back from a trip. I'm super exhausted, and what I'm about to tell you should give you a lot more reason to actually go forward and do something about your life right now. So I have been traveling for years and years. I love traveling, but from the last 2 years, I had almost put it on freeze because I quit my job and I was about to do something with my business. So all the money has to go into business. Now, I just went for a trip and I felt so exhausted. Like the level of energy, I just turned 27 this year, and my energy levels, what they used to be before 2 years and right now, they're entirely different. ठीक है, I just turned 27 लेकिन and I did not even do any trekking or anything like that. I just went, I chilled out, I just went sightseeing, sitting most of the time, hardly walking, and I came back and still I feel so exhausted. This should actually be acting as a sign for you that work on your goals, go faster onto them, make money fast, do anything faster. I wouldn't say fast, I mean don't get into bad things, but like get a little bit more serious about your life and your desires and your wishes, because if you're going too slow, I'm telling you, age does not stop for anyone, time does not stop for anyone. When I used to be 23, 24, my energy levels were different. Now that I'm 27, I feel so bad, and it just gives me like a reality check that Deepa, you need to work on your business and grow it. If you want to travel continuously, do it right away, because you are not sure 5, 10 years down the line how your energy levels, what your body's capacity, physical capacity of your body is going to be. Okay, so let's do that. Today we are anyways talking about self-sabotage because it is one of the biggest reasons why we are not able to go faster on your goals. हमारे करियर में हम उतना अच्छा ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं? हम जो अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, वो क्यों नहीं हम अचीव कर पाते हैं? बिकॉज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रोड़ा हम खुद ही बने हुए हैं. हम समझते हैं हमारा दिमाग यार ऐसा क्यों है, मैं कुछ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसका उल्टा क्यों करने लगता हूँ. अगर मैंने वेट लॉस का गोल बनाया है, देन व्हाई डू आई गो अहेड and eat more and more junk which is opposite of that goal. So today I'm going to tell you about it. Okay, where does it come from? वैसे सेल्फ सैबोटाज आप पहचानोगे कैसे? जैसे ही आप कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जैसे ही कोई बड़ी आपने कोई गोल सेट किया है एंड यू हैव द टाइम एंड यू हैव ऑल द राइट थिंग्स दैट यू नीड टू गो अहेड एंड वर्क ऑन दैट गोल, लेकिन आप वो नहीं करते हो, आप जाके उल्टा प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हो. मतलब सब चीज़ें सेट है बट उसके बाद भी यू गो अहेड एंड प्रोक्रेस्टिनेट राइट बिफोर अ बिग अपॉर्चुनिटी. इट इज़ नॉट लेजीनेस, इट्स सेल्फ सैबोटाज इन एक्शन. ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों होता है? इफ़ वी लुक एट द न्यूरो साइंस ऑफ इट, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड एमिगडाला. इट्स लाइक द फियर सेंटर ऑफ आवर ब्रेन. ठीक है, इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमोशनल रिस्क एंड फिजिकल रिस्क. फिजिकल रिस्क क्या होता है? हमारी जान अगर खतरे में. ठीक है, तो इट एक्ट्स आउट, दैट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एक्ट्स आउट, इट फ्रीजेस अस, इट स्टॉप्स अस फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन फर्दर. जब हम कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं विच पुट्स अस आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, तब भी हमारा एमिगडाला पार्ट ऑफ आवर ब्रेन गोज अहेड एंड गेट्स एक्टिवेटेड. उसकी वजह से क्या होता है? दैट इमोशनल रिस्क दैट यू आर टेकिंग टू ग्रो, ठीक है, वो इट्स नॉट अ बिग रिस्क एज सच, बट दैट योर ब्रेन टेक्स एज इफ इट इज़ एज सीरियस एज फिजिकल रिस्क. एंड उसके बेसिस पे क्या होता है? जब भी आप कुछ नया करने जा रहे हो, योर ब्रेन विल मेक यू डिले थिंग्स, it will make you to overthink, it will make you to downplay your own capability. एकदम से burnout होना शुरू होगा, you may feel exhausted, you may feel anxious, you may feel like you want to quit too early. ठीक है, if that is the pattern that is happening with you, then self sabotage is at work and you really need to take care of it
identify that pattern and work on it if you want to grow in your life and actually go ahead and achieve your wishes, because wishes are time bombs. स्पेशली मेरे ट्रिप के बाद मुझे पता चला है कि ऐसे नहीं सोच सकते कि 10 साल बाद या 20 साल बाद कुछ चीज़ कर लूँगी. आई डोंट नो इन व्हाट कंडीशन माई बॉडी वुड बी इन. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू go ahead and achieve your goals as fast as you can, of course, while enjoying life by being healthy, but you need to be a little bit more serious about your goals and make sure कि आप self sabotage को हटा रहे हो, and that is what we're going to discuss about today. ठीक है, जब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कुछ भी चीज़ करनी है, सब चीज़ें रेडी है, आपके पास टाइम भी है, बट यू जस्ट फील लाइक आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी अभी, आई एम नॉट रेडी राइट नाउ, वो जो फीलिंग बार बार आती है, इट्स जस्ट सेल्फ सैबोटाज. आपका ब्रेन जो है अभी भी उस फ्रीज मोड में अटका हुआ है. वो होता क्यों है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ वर्दिनेस अमाउंट. सेल्फ वर्थ से आती है ये सारी चीज़ें. द वे दैट वी हैव बीन conditioned, and the way that we have been parented, and the way that we have been nurtured throughout our growing years, maybe we were not appreciated that much. उसकी वजह से क्या होता है, हम वो कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो नहीं हुए होते हैं. द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन एक्चुअली गो अहेड and achieve bigger things, and the confidence that I can actually go ahead and take on all of those things. I deserve all of that success, I can take it. ठीक है, वो वर्दिनेस से आता है. मे बी यू ट्राइड समथिंग in your childhood and you were not appreciated that much, you were not supported that much, or people say your friends were jealous of your success. Because of that क्या होता है कि you link all of those different things with how you perform in life. कई बार क्या होता है, you were maybe judged too much, your parents always compared you or society compared you, and your self worth was tied to what you were achieving. कि भाई तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं तो ही ये बंदा तो अच्छा है, ये बंदी तो अच्छी है, और अगर इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं क्या ही है. ठीक है, सो मे बी योर सेल्फ वर्थ वॉज ऑल्सो टाइड टू अचीवमेंट. ठीक है, उसकी वजह से what happened is you got into this survival mindset of always performing. कई बार अगर आपने ट्राई किया कुछ ऐसा करने का, a little bit more challenging, बाकी सारी चीज़ें उठा के I'm gonna focus on this one thing only, लेकिन बाकी लोगों ने आपको disagree किया या बाकी लोगों ने आपको abandon किया when you were on your path to achieving your goal, वहाँ से भी वो abandonment wound भी निकल के आता है. ठीक है, मे बी you were trying too hard to do something and आपके फ्रेंड्स ने आपको उस टाइम पे छोड़ दिया saying you are too ambitious, तुम ज़्यादा सीरियस हो रही हो या हो रहे हो इस चीज़ को लेके. ठीक है, all of it happened in our growing up years, in our childhood, and when we were became younger as well. उसकी वजह से क्या होता है that you have this trauma, a lot of us have this trauma of being too much or being too passionate. मेरे साथ मुझे बहुत बार ऐसा फील हुआ है that people make me feel guilty when I try to actually go ahead and achieve a lot more in life. And उसकी वजह से I have actually downplayed myself at a lot of different places in my life. तो वो नहीं करना होता है. उसकी वजह से क्या होता है, यू हैव दीज टू इश्यूज. वन इज़, एक तो आपकी सेल्फ वर्थ या तो आपकी परफॉर्मेंस से टाई कर दी गई, उसकी वजह से यू आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ ओनली डूइंग थिंग्स परफेक्टली और नॉट डूइंग इट एट ऑल. या सेकेंड चीज़ ऐसी हुई कि यू ट्राइड to work hard but you were labeled as too ambitious or too much, and उसकी वजह से now you have that abandonment issue attached to working on your goals. और उसकी वजह से क्या होता है, it's very unconscious. by the way, ये सब conscious नहीं होता है, ये बहुत unconscious होता है. जब आप जाके actually वो self reflection करोगे, वो therapy लोगे उन चीज़ों के बारे में, तब आपको समझ में आएगा अच्छा these patterns are coming from this behavior or this experience that I've had in my life. ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक सक्सेस का गिल्ट आता है. ठीक है, एंड यू ऑल्सो हैव दिस फियर ऑफ लीविंग अदर्स बिहाइंड. देखो, कभी भी आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो ना, दिस इज़ द लेवल ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी, एंड दिस इज़ योर लेवल. अगर आप ग्रो करना चाहते हो आपको राइज करना पड़ेगा. नाउ एक बीच में गैप आ गया है दोनों के. ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सब लोग ग्रो करें और आपके लेवल पे आए, जो कि नहीं होने वाला. वाई? बिकॉज सेल्फ ग्रोथ इज़ ए चैलेंजिंग जर्नी. आपको अपने डिस्कम्फर्ट से बाहर आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स इट. ठीक है, या फिर आप
उनके लेवल पे आओ, अपना नीचे लेवल गिराओ, ग्रो मत करो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस गैप अ सक्सेस गिल्ट गेट्स क्रिएटेड। आपको सक्सेस का गिल्ट होता है कि अगर मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई तो मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगी, फ्रेंड से दूर हो जाऊंगी, पार्टनर से दूर हो जाऊंगी। दैट इज़ वन थिंग दैट हैपन्स। सेकेंड थिंग इज़ यू ऑल्सो हैव दिस अनकॉन्शियस फियर ऑफ लीविंग अदर्स बिहाइंड। इट्स बेसिकली अ सर्वाइवर्स गिल्ट, इसको सर्वाइवर्स गिल्ट भी बोला जाता है। तो इट्स लाइक your mind, when you were abandoned, when you were not supported, or you were not nurtured by society and your parents to grow up to be this confident individual, अगर वो चीज़ नहीं हुई है, then you have this subconscious loyalty at the back of your mind to struggling family or to your past self। जो आपका छोटा वर्जन है उससे एक लॉयल्टी बनी रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि मे बी आई विल नॉट बी एबल टू होल्ड ऑन टू माई पास्ट सेल्फ और होल्ड ऑन टू बाय पीपल हु नो, ठीक है। हमारा ब्रेन क्या करता है, इट ऑलवेज पिक्स अ फैमिलियर स्नेक ओवर एन अनफैमिलियर सेफ्टी। हमेशा याद रखना, ब्रेन विल पिक अ फैमिलियर स्नेक as compared to an unfamiliar safety, because brain के लिए we are wired that way। familiarity is the first thing that it wants in life। okay, so because of that what happens is आपके अंदर वो subconscious loyalty हो सकती है, or you could have this fear of being judged, especially if you are too innocent or if you're too grounded, you belong to areas where जैसे उदयपुर हो गया, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा लोग अपने ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, दे वैल्यू बीइंग हम्बल टू मच। उसकी वजह से क्या हो सकता है, people who come from humble backgrounds could also have this fear of being judged, fear of being arrogant, fake or unrelatable to their friends and family। मेरे को भी होता है, I literally belong to a village and a lot of times the things that I'm doing I'm not able to tell it to other people because वो नहीं समझते, उनको कॉर्पोरेट चीज़ें या जो भी मैं बिजनेस में कर रही हूँ वो सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। दे आर फ्रॉम दिस फार्मर्स बैकग्राउंड और विलेज बैकग्राउंड। उसकी वजह से मुझे भी कितनी बार ऐसे गिल्ट फील होता है, ठीक है। सो दिस कैन हैपन एंड इसकी वजह से भी सेल्फ सैबोटाज हो सकता है। यू नीड टू लुक इनटू योर पैटर्न्स इन लाइफ, किस वजह से स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में सेल्फ सैबोटाज हो रहा है, ठीक है। आपका वॉज योर सेल्फ वर्थ टाइड टू अचीवमेंट, और डू यू कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, और वर यू जस्ट to be too passionate or too confident or too much for achieving your goals, or were you tagged as tried, that as if you're trying too hard। उसकी वजह से भी all of that fear of judgment and guilt and subconscious loyalty, उसकी वजह से भी हम self sabotage करते हैं, ठीक है। In fact, imposter syndrome, if you guys know, imposter syndrome is basically you always feel like as if somebody is going to burst you। I mean, you are at this office, you have this title, but you feel like you do not deserve it, and some people are going to kind of burst you and burst your secret that you don't deserve to be here but you are here। I felt it for the longest time in my consulting job at Bain। Starting में इतना ज़्यादा feel होता था। I was doing so well. I got like 2 level promotions in just 1.5 years. But I used to feel like I do not belong here, or whatever all of this good work that I'm doing by luck and by chance, and maybe I'm going to be exposed. Like, what am I going to be exposed of? But that is what imposter syndrome can do to you। And to tell you the truth, science has proven that imposter syndrome is highest among people who are high performers। ठीक है, तो अगर आप को भी imposter syndrome feel होता है, then I have good news for you। You are also one of the most highest performing individuals। तो self imposter syndrome को हटा दो, सेल्फ सैबोटाज का पैटर्न रिकॉग्नाइज करो एंड वर्क ऑन इट एंड गो फास्टर ऑन योर गोल्स, ठीक है। क्यों ये करना ज़रूरी है, क्यों सेल्फ सैबोटाज का पैटर्न आइडेंटिफाई करना, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना और उसको हटाना ज़रूरी क्यों है? पहले तो लॉजिकल चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि गोल्स पे अपने प्रोग्रेस कर सकते हो, बट अगर आप वो नहीं कर रहे हो ना, तो सेल्फ सैबोटाज विल make you waste so many precious years, days and hours of your life। ठीक है, डबल चेक करते रहोगे, खुद को डाउट करते रहोगे, सोचते रहोगे इतना फास्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमेशा ओवर कंपनसेट करते रहोगे,
ठीक है, नॉट बिकॉज यू कैन नॉट बिकॉज यू आर नॉट रेडी, बट बिकॉज आपका दिमाग हमेशा आपको बोलता रहता है यू शुड नॉट डू इट राइट नाउ, यू शुड नॉट डू इट राइट नाउ. ऑल ऑफ दैट इज जस्ट सेल्फ सैबोटाज. उसका रूट कॉज फाइंड करो, पैटर्न फाइंड करो, and work towards removing it, because then you will save so many precious years of your life. You will grow much faster in your career and in your life, and you will have this internal satisfaction. वो anxiety नहीं होगी जो overthinking से आती है. You will be mentally happy. आपकी mental health भी improve होगी, और अगर आपका physical health goal है वो भी improve होगा. So you need to remove self sabotage from your life. ठीक है. उसके अलावा career में क्या होता है, अगर आप सेल्फ सैबोटाज करते हो एंड यू हैव दिस इम्पोस्टर सिंड्रोम एज वेल, आप सेल्फ सैबोटाज कर करके ना तो रेस के लिए पूछोगे लोगों से, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा दैट आई डिजर्व अ रेस एंड आई गो अहेड एंड आस्क इट. सो यू विल नॉट आस्क फॉर रेसेस, यू विल टर्न डाउन विजिबिलिटी. आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे दैट यू शुड बी विजिबल, यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर इंडस्ट्री, इन योर कंपनी. उसकी वजह से क्या होगा, पीपल विल नॉट गिव यू करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल. एंड हमेशा आप सेफ रोल्स में रहोगे, ऐसे रोल्स में फंसे रहोगे जो यू नो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जिससे करियर में ना फाइनेंसिस में ग्रोथ हो रही है, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ फैमिलियर, इट फील्स सेफ टू योर ब्रेन बिकॉज ऑफ दैट ऑल दैट ट्रॉमा दैट यू हैड ग्रोइंग अप. that trauma is still holding you back in your career. और अगर if you prefer to stay safe even if it pays you less, ठीक है, even if it is a toxic environment, if you still prefer to stay in that familiarity, then that is just your self sabotage at work. और ये आपका career जिस तरह से destroy कर रहा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है. Okay, and another thing is, as I said, emotional anxiety होती है. कितना खुद को अगर सोचते रहोगे, हमेशा खुद को डाउन प्ले करते रहोगे, सेकेंड गेस करते रहोगे, कुछ जाके कर सकते हो, लेकिन उसकी जगह पे एक इंसान तो जाके वो चीज़ कर रहा है, अपने गोल्स प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन आप हमेशा खुद को, आपका खुद का ब्रेन ही होल्ड बैक करता रहेगा. और उसकी वजह से जो इमोशनल चैलेंज आता है, जो इमोशनली स्टक होते हो आप, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट पेन. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई सेड, टाइम. ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, एज किसी के लिए नहीं रुकती है. मैंने 2 साल ट्रैवल नहीं किया फ्रॉम 25 टू 27 की तो मैं हुई ना, एंड 27 की होने के बाद आई फील माई एनर्जी लेवल्स हैव चेंज सो मच. अब मुझे ज़रा सा ट्रैवल करके एग्जॉस्टेड फील होता है. सो आई एम गोना बी मोर कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ एंड एवरीथिंग, बट मोर ओवर आई जस्ट रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट टाइम इज़. आपको लग रहा होगा मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ या कर लेता हूँ चीज़ें. प्लीज़ लर्न टाइम मैनेजमेंट, प्लीज़ लर्न हाउ टू get rid of this self sabotage and how can you make faster progress on your goals, because जब वो करोगे तभी ज़िंदगी में पैसा आएगा, ग्रोथ आएगी, उससे फिर अपने विशेस पूरी कर सकते हो. डोंट कीप योर विशेस टिल योर 40-50 ईयर्स ऑफ एज. उस टाइम पे पैसा होगा, एनर्जी नहीं बचेगी बॉडी के अंदर. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट लेसन आई वॉन्ट यू टू टेक फ्रॉम टुडे. ठीक है. सो इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, हाउ डू यू एक्चुअली ब्रेक द साइकिल ऑफ सेल्फ सैबोटाज. पहले तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आधा काम आपका अवेयरनेस से ही होगा. आपको पूछना होगा व्हाट आर द थिंग्स दैट आई बिलीव आई कांट डू. ठीक है. लिमिटिंग बिलीव्स पे मैं एक और वीडियो कर चुकी हूँ, यू कुड गो टू दैट वीडियो एज वेल. इट्स रियली गुड. तो पहले तो अपने आइडेंटिफाई करो, अवेयरनेस होनी चाहिए कौन से बिलीव से आ रहा है सेल्फ सैबोटाज. ठीक है. व्हाट डज माई ब्रेन थिंक एट द डीप रूट कॉज, उसकी वजह से मेरा ब्रेन रोक रहा है मुझे, क्या सोचता है मेरा ब्रेन. ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज अफ्रेड ऑफ डूइंग सेल्स. आई एम वर्किंग ऑन माई बिजनेस. विदाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस इज नथिंग. 90% ऑफ बिजनेस इज फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर सेल्स एंड मार्केटिंग. ठीक है. बट आई वॉज सो अफ्रेड ऑफ डूइंग सेल्स and I would always self-sabotage myself. इतना काम करके भी I would not pitch myself and stuff. And I realized that came from this belief that, growing up I believed that sales is a very bad thing and I can never do sales. वो एक unconscious limiting belief मेरे अंदर था. ठीक है. तो पहले तो आपको self-sabotage के लिए पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो हम सीख चुके हैं कहाँ से आ रहा है. तो क्या बिलीफ है, व्हाट आर द थिंग्स दैट माई ब्रेन बिलीव्स दैट आई कांट डू. एंड सेकेंड, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम विच एक्सपीरियंसेस इन लाइफ डिड आई इंटरनलाइज दैट बिलीफ एंड पुट दैट बिलीफ ऑन मी. ठीक है. सेकेंड थिंग इज, यू ऑल्सो गोट टू आस्क योरसेल्फ, हु टॉट मी दिस.
मेरे पेरेंट्स ने मेरे को, मेरे पेरेंट्स से सीखा मैंने ये चीज़, या फिर जो सोसाइटी में बाकी लोग थे या स्कूल में लोग थे, किन लोगों ने मुझे ऐसे इस तरह से ट्रीट किया दैट आई गॉट दिस बिलीफ अबाउट मी, ठीक है, वो रिवायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट स्टेप इज़ दैट अवेयरनेस. सेकेंड स्टेप दैट विल टेक टू रिमूव सेल्फ sabotage is nervous system regulation. What is nervous system regulation? आपका ब्रेन अनरेगुलेटेड है, बहुत तरह की चीज़ों की वजह से योर ब्रेन हैज़ लर्नड टू स्टे इन द सर्वाइवल मोड. आपको सर्वाइवल मोड से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है. योर ग्रोथ शुड नॉट फील लाइक अ ट्रॉमा टू यू. वर्किंग ऑन योर गोल्स, स्टेइंग डिसिप्लिन्ड शुड नॉट फील लाइक अ ट्रॉमा टू यू. It feels like a trauma because you have not worked on those wounds. So you will identify those wounds and work on those wounds, remove that trauma and rewire your brain for growth. I've done a lot of videos on all of these different topics. You can find it on my YouTube channel. आप नर्वस सिस्टम रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सेल्फ सैबोटाज हटाना चाहते हो, ठीक है. थर्ड थिंग आई वुड से इज रिवायर विद कंपैशन, नॉट विद जजमेंट. जजमेंट बाकी लोगों का काम है, दुनिया करेगी आपको जज, आपको खुद को जज नहीं करना है. इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन. कंपैशन क्या होता है? अपने आप को डम्प नहीं बोलना है, स्टूपिड नहीं बोलना है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है, ठीक है. पास्ट में जो भी हुआ, ऑलवेज बी कंपैशनेट टू योर पास्ट वर्जन. दैट वर्जन डिड द बेस्ट ही और शी कुड डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स he or she knew. Okay, so always be compassionate towards yourself. Rewire your brain with compassion, with care, not with force. अगर force करोगे brain act out करेगा, self sabotage और ज़्यादा intense हो जाएगा. We do not want that, ठीक है. लास्ट थिंग इज एक मंत्रा फॉलो करो अपनी लाइफ में. अगर आप सेल्फ सैबोटाज करते हो, अगर आप इम्पोस्टर सिंड्रोम फील करते हो, ठीक है, यू शुड हैव दिस मंत्रा. इट्स सेफ टू बी सीन, इट्स सेफ टू विन, इट्स सेफ टू ग्रो. हर रोज़ अपने आप से बोलो, बिकॉज आपका RAS, द पार्ट इन अ ब्रेन which is responsible for your motivation, for your behavior, for your consciousness, that actually gets rewired with the things that you say. तो हर रोज़ अपने आप से बोलो, it's safe to be seen, it's safe to win, it's safe to grow. I am allowed to outgrow my old limits. ठीक है, I'll say that again. It's safe to be seen, it's safe to win, it's safe to grow. I am allowed to outgrow my old limits. ठीक है. Once you do that, let me know how this session was for you. Self sabotage की वजह से I think a lot of us downplay far below our potential. जितना अच्छा हम लाइफ में कर सकते हैं, जितनी हमारी खुद की कैपेबिलिटी है, फुल पोटेंशियल टैप करना तो दूर की बात, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उस पर भी हम वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो सेल्फ सैबोटाज अपनी लाइफ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड टुडे सेशन इज़ गोना हेल्प यू डू दैट. सो लेट मी नो, दैट वाज द सेशन फॉर टुडे. हाउ इट फेल्ट, व्हाट क्लैरिटी डिड यू गेट, व्हाट रियलाइजेशन डिड यू गेट. आपकी लाइफ में पर्सनली सेल्फ सैबोटाज किस पैटर्न या किस रूट कॉज की वजह से होता है? लेट मी नो दैट in the comments, and if you need further guidance, I would love to help you out as well. If you have any questions or comments, I would love to discuss those. Put them down in the comments. And the last time I checked, a lot of you watch but do not follow or subscribe to my Instagram channel or to my YouTube channel. So please do that. Anyways, Instagram live का मेरे को access हटने वाला है. मैं Instagram पे ये वीडियो नहीं डाल पाऊँगी because अभी मेरे 1000 followers नहीं है, and Instagram has come up with that notification. So please make sure that if you like my videos and if you want to see my face in future, please go ahead and subscribe to my YouTube channel. And I love bringing all of these, topics to you because I understand how important this is. And not only are you not utilizing your potential and growing in your life, इसकी वजह से suffer भी बहुत ज़्यादा होता है हमें. And why to suffer when we can live a better life? And I want you to do that. I want you to live a better life. ठीक है, so let's do that. Let me know how it went for you. What clarity did you get? And I look forward to seeing you tomorrow. So that was the session for today. Bye-bye.